السلام علیکم گائز، میرا نام ہے محمد نادر اور میرا نام ہے ذیشان اقبال۔ تو گائز آج ہم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے بیان میں ریاکشن دیں گے، جس میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب دنیا کے گستاخوں کو جواب دے رہے ہیں۔ لیٹ گیٹ سٹارٹ۔ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے۔ میں ابھی اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں، آپ اردو میں تقریر کرنا۔ میں اردو میں کرتا ہوں، لیکن 1 منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنا لوں۔ ساڑھے قائد آکھیا سی کہ لال قلعے ہوتے پاکستان دا پرچم لہرائے گا۔ ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گل آکھی، وہ خود دس کے کہن کہ مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی، مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی۔ انہاں مالکاں دے آکھیا اساں اپنے قائد دی گل نوں دہرا دیتا۔ ایک گل نہ واپس ہو سکتی، اس تو اگے ود چڑھ کے ہو سکتی۔ مودی اور اس کے ہواری یہ غور سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے۔ اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر اندلس آتے ہیں، اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے، وہ 16 کا ہے یا 17 کا ہے، دیبل میں آ کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ تو ہم ان کی ذریت ہیں، اور تمہاری ذریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ، 16 حملے ہمارے ناکام بھی ہوں، 17ویں حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تم کسی غلط فہمی میں ہو ایک کھوتی کے لیے، اس کو کھوتی کہنا کھوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے، اور وہ ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو پہنچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب نبی جان، ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی من سب نبی جان، اور ابھی کوئی متوالا غازی علم الدین کا چاہنے والا نکلے گا تمہاری گلی سے، اس ملونہ کا کائنات کی سب سے پلید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تن سے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن قلعوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی، پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ قلعے بنا مشقت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لال قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا، اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور یہ یاد رکھ لینا، ہمارے ماں نے ہمیں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دی ہے، ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو، نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے۔ یاد رکھ لینا، میں ببانگ دہل، لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط سے بات کریں، آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے، میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو، جہاں سے گستاخ سر اٹھائے گا لبیک والے وہی اڈی دیں گے۔ اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیج دوں گا، ہندی میں بھی بھیج دوں گا، فارسی میں بھی بھیج دوں گا۔ یاد رکھنا، تم جہاں سر اٹھاؤ گے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں کچلے گا۔ اور زمانہ بدل سکتا ہے، سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے، جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں، ہمارا بیانیہ نہیں بدل سکتا۔ ہمارا بیانیہ گستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے، وہ ہے من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ اور اس طرح نہیں کہ قتل کر دو، بابا جی نے آکھیا وڈ کے رکھ دو۔
उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए, बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी। सर से पा काट के रख दो। ये है मन सब्बा नबी जन फक्तुलू का माना। और हिंदू और उसके हवारी और कोई भी कायनात का कोई भी शख्स अगर ये समझे कि हम हुजूर के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना अब उम्मत बेदार हो चुकी है। तुमने बहुत कुछ कर लिया। तुमने इराक लताड़ा, अफगानिस्तान लताड़ा, बर्मा लताड़ा, चेचनिया लताड़ा, फलस्तीन लताड़ा। अब खात्मे का वक्त करीब हुआ चाहता है। अब उम्मत की बेदारी का वक्त आ चुका है। और ये याद रखना, वो कोई और होंगे जो स्टेज पर चढ़कर कोई और बात करते होंगे और अंदर जाकर कोई और बात करते होंगे। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब कि उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताखे रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीजन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है, अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे तार करेंगे। बस इतनी सी बात है। ये हमारा वलवला, ये हमारा जज्बा। मैं उन लाइनों को कहता हूँ, कौम की बेटियों के थरकते जिस्म दिखाते हो, ये भी दिखाओ। पता लगे हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान के हाथ में जो बंदूक है ना, उसका जरा गिरफ्त मजबूत हो कि हमारे पीछे कौम खड़ी है। नारा आगे कदम बढ़ाऊं तो सही, लेकिन क्या करें, रंगीले टकरे हैं। कोई बात नहीं, हमारा वक्त आया चाहता है, वो वक्त जिसको बाबा जी बार बार दोहरा कर गए हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, और जिसने निकल कर रहमतुल आलमीन से वजीराबाद तक जिसने जुल्मत की सल्तनत को उलट रखा था। हाँ, वो शेर कल भी होशियार था, आज भी होशियार है। बेदार होना बड़ी दूर की बात, वो होशियार भी है, आंखें भी खुली है और चुस्त भी बैठा है। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूँ कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वाले हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। जुल्म आखिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। उनके नबी की इज्जत की बात हुई है और वो बाहर रोडों पर भी ना आए, वो मलूना के बारे में बात भी ना करे। हम इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर कर, अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है, उस पर भी लानत भेजते हैं। और ये याद रखना कि नामूस रिसालत का मसला ना हिज़्ब इक़्तिदार का है, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का है। सिर्फ ये हर मुसलमान का मसला है जिसने कलमा पढ़ा है। अगर वो इसका हक अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन भी हुजूर को मुंह नहीं दिखाएगा। हमारे बाबा जी कह के गए हैं, इन्हें इधर भी जलील होना, कल उधर भी जलील होना, दुनिया भी जलील होना, इन्हें नस्ल में भी बदबूदार होना। ये साढ़े बाबा जी सानू दस के गए, ये दिन सानू उस दिन दे आखे याद हैं कि इस दिन जलील किस तरह होना। सत सलाम बाबा जी तुहानू कि तुसी सानू वो गल दसी, असी अपनी अखां नाल वो दिन देख रहे हैं, असी अपनी अखां नाल वो देख रहे हैं। अज भी तुहाडे कोल मौका, ए मैशत, ये सारियां गल्लां हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर के दौर बड़ी मुश्किलात सन। आपकी तनख्वाह खुद इतनी तनख्वाह सी जितनी एक मजदूर को मिलती सी, लेकिन जदों यंगे यमामा हुई, हुजूर की इज्जत की जंग हुई, उस तो बाद कैसर और किसरा दी नेमतां मस्जिद नबी के दरवाजे च पईयां होईयां सन। अज भी असीं कहंदे आ क्या हुजूर के नाते एक जंग कर लईए, एक बारी दुनिया नूं
दईए कि असा गौरी भी हुजूर दे नाम वास्ते रखा, अब्दाली भी हुजूर दे नाम वास्ते रखा, अतब भी हुजूर दे नाम वास्ते रखा, दरार भी हुजूर दे नाम वास्ते रखा, और खालिद बिन वलीद दे गुलामा ने खालिद डग भी हुजूर दे नाम वास्ते रखा। और मैं कहना बाहर कढ़ना नहीं, सिर्फ टाकी शाकी मारो, जे मोदी की धोती ना खुली तो सानू आगे फड़ लेना। असी अपने वतन च खड़े हाँ और उस कछार च खड़े हाँ जिथों ये नारा निकलिया, जिथों ये जज्बा निकलिया। इंडिया के मुसलमान बनाओ बई मुंडे हो इन्हां दी, इंडिया के मुसलमानों को दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल हां, कोई शेर कदम बढ़ाए। हुण लाओ नारा लब्बैक मरदूद मीडिया जड़ा ए मंजर विखाओ मोदी नू जे और निशांत अगर कौमी टीवी के आगे माफी ना मंगना साढ़े नाम पर बिठा के रख देना। लेकिन जदों तुसी लोहारा नू दिखाओगे, इतफाक स्टील मिल वाले नू दिखाओगे, उन्हां दे नाल कारोबारियां नू दिखाओगे, उन्हां दे मोदी दी यारां नू दिखाओगे, उन्हां नू पता है अपने ही हैं, 2 टके लैके चुप कर जाएंगे। उन्होंने पता है तो कि दोवें जहां लैके भी हुजूर दे नाम ते सौदा करने वाले नहीं है, ये इस्लामी टच वाले नहीं हैं, ये सच वाले और ये सच करके भी विखा देन। ये सच करके किवें विखा देन जे अपनी आई ते आ जान, फिर सारे जुल्म भी आ जान ते वजीराबाद तक हर शह लपेट के रख दें और मुस्तकबिल की ऐसी तारीख रकम कर दें कि दुश्मन आज भी उस नाम तो लरसदा, क्योंकि असी वारिसा महमूद गजनवी दे, असी वारिसा मोहम्मद बिन कासिम दे, असी वारिसा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे, असी वारिसा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे, असी वारिसा ज़हीरुद्दीन बाबर दे और असी वारिसा औरंगजेब आलमगीर दे। हाँ, बड़ी चंगी तरह तुहानू पता, हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा, अज भी उन्होंने नाम तो खार खांदा, असी वारिस उन्हां दे। और साढ़े नाल सोच समझ के गल करो, सानू शरीका पिटना नहीं आंदा, दुश्मनी करनी नहीं आंदी, ये सारियां गल्लां पिछे रह जांदियां जदों साडे आका दे बारे गल हो जाती, फिर असी अपने बच्चे लैके करबला च आ जांदे ते गल ही कोई नहीं। फिर तो जनाब असी खुद पीछे बच्चे गुहा के भी कहने मालिक जिवें तू राजी होवे असी राजी। असी अपने तमाम वसाइल नाल उस वक्त मैदान च आ जांदे आ जदों साडे आका मौला दी इज्जत उत्ते हरफ आ जाए, उन्हां दी नामूस उत्ते हरफ आ जाए। असा सारा कुछ रखे ही हुजूर वास्ते होया। बाबा जी गल ही मुका गए, क्यों असा गर्दना हुजूर वास्ते रखी हुई हैं, जिन्हें जिन्हें गर्दन हुजूर वास्ते रखी हाथ चुको। तो गाइस देखो वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ये वीडियो इस्लामी थी। तो इस वीडियो में मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब गुस्ताख रसूल को सज़ा देने के बारे में बात कर रहे थे। ये ऐसे चलता आ रहा है ये निज़ाम, जैसे सहाबा कराम थे तो उनके ज़माने में कोई अगर गुस्ताख रसूल निकलता था उस दौर में तो उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी, उनके ख़िलाफ़ जहाद करके उनको सज़ाएँ दी जाती थी। फिर ऐसे ही करबला का वाक़या आ गया। करबला के वाक़ये में भी हज़रत इमाम हुसैन और हसन ने दोनों ने मिल के कुर्बानियाँ दी और इस्लाम दीन को सरबुलंद किया, इस पर कोई आँच नहीं आने दी। तो फिर ये आज 21वीं सदी है, उस वक्त में और आज के वक्त में जितना भी वक्त गुजरा है कई गुस्ताखियाँ उठी हैं और कई लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बोले हैं, पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया गया और उनको सज़ाएँ दी गई। फिर अब भारतीय मरहूना के ख़िलाफ़ जो बयान था इसमें उनको कह रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम अमन का दीन है। वो खुद कह रहे थे कि इस्लाम अमन का दीन है, पर एक हद तक, जब तक कि कोई इसके ख़िलाफ़ बोले ना, कोई हमारे मौला आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बोले ना,
تو انہوں نے گستاخی کی ہے، تو سعد حسین رضوی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ اگر انڈین گورنمنٹ نہیں دیتی سزا تو سعد حسین رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو سزا دے گا اور انشاءاللہ ضرور دے گا۔ تو گائز اس ویڈیو میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، پر کوئی بھی اگر گستاخی کرے گا پوری دنیا میں تو سعد حسین رضوی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سزا دیں گے، ہم چاہے جو مرضی کرنا ہو۔ تو یہ ہمارا ری ایکشن تھا اس ویڈیو پہ، تو آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہماری غلطی ہے۔ تو ویڈیوز کو لائک کرنا اور شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا۔